teachers, students, and our respected chief guest and guest of honor, and all the well-wishers of this school. So I welcome to this program of Swamiji Janma Jayanti, Sri Thutan Tambasar, SP Lohit District, as chief guest of this program. I welcome Nakub Talosar, DVO Lohit District, to this program. I welcome all the parents, students to this auspicious occasion of Swami Vivekananda Janma Jayanti. Today we are celebrating Vivekananda Jayanti. As our Principal Didi has mentioned, that this Jayanti today is celebrated as a Tithi day. Now, before I start telling about the significance of the day, I will tell you why it is necessary to be told, why the significance has to be told. When we have announced that we are going to celebrate this Tithi day on 21st instead of 12th January, means normally this many years we used to celebrate only on 12th January, and the protocol, the process was everybody was invited on 12th January. सभी को हम 12 जनवरी को बुलाते थे, उस दिन हम ऐसा ही कार्यक्रम करते थे और हम अपने अपने घर चले जाते थे. पेरेंट्स भी बहुत खुश है, अपने बच्चों से मिलने का समय मिल जाता था, खुश हो जाते थे, सभी घर चले जाते थे. मगर जिस उद्देश्य से हमको ये विवेकानंद जयंती मनाना है, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा था? इसके ऊपर हमारे हेडक्वार्टर विवेकानंद केंद्र में इस पर आलोचना विवेचना हुई कि जिस उद्देश्य से हम इस महान इंसान जो कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ 39 साल उन्होंने जिया और इस 39 सालों में उन्होंने इस ब्रह्मांड को, मैं नहीं बोलूंगा इस देश को, to this world he has given such a great vision. Whether we are living that vision, whether we are going in that path what he has shown, that discussion took place, and then we changed the format a little bit. That it is very important that whatever the philosophy, the ideas what Swamiji was having, it has to reach to the maximum number of people possible. So that's why from last year there was a change in the process of celebrating this Vivekananda Jayanti. हमने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाया. हमने एक कार्यक्रम रखा जिसका नाम है आउटरीच प्रोग्राम. मतलब ये 25 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक जब हम समर्थ भारत पर्व मनाते हैं, ये समर्थ भारत पर्व मनाने के दौरान हम स्वामी जी के विचारों को लोगों तक लेकर जाएंगे. क्योंकि अगर हम विद्यालय में सिर्फ मनाते हैं तो सीमित लोग ही यहाँ पर आते हैं. वेरी लिमिटेड पीपल कम हियर, ओनली द पेरेंट्स कम हियर. Whereas our idea, the Vivekananda Kendra's idea is that the ideas of Swamiji has to reach maximum number of people and everybody should get benefited by that one. At the very beginning, I would like to extend my warm wishes to all of you on this auspicious occasion of Swami Vivekananda's Janma Jayanti 2025. Swami Vivekananda was one of the most tallest and one of the most biggest, we can say, leader spiritually, and he was not only a great thinker, he was a visionary leader, he was a youth icon, and he was a great philosopher. Swami Vivekananda, his philosophy emphasized on the importance of self-confidence, discipline,
and service to the humanity. We all know Swami Vivekananda ji was born in 1863 in Kolkata. His childhood and earlier name was Narendra Das Datta. All of you know the government of India had also declared in 1984 that the birth anniversary of Swamiji would be celebrated all over India as a National Youth Day. This motto of celebration, National Youth Day, is to impart the legacy of Swamiji's ideals. Actually, I, as a police officer, don't get such opportunities so often. So, ma'am, thank you so much, and it's an honor to be with you all. देखिए, we were listening to previous speakers कि स्वामी जी का क्या contributions है ना, towards the society, towards our country, towards the whole world, क्या contributions हैं. But the contributions, I don't think I'm qualified enough to even speak about such a great person, है ना. हमको लगता है इतना ऊंचे दर्जे का मतलब स्वामी जी था, एक ग्रेट पर्सनालिटी था, उसके बारे में हम जैसे छोटा लोग कहने के भी कुछ है ही नहीं, और कहते हैं तो आई थिंक मतलब उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगा. बट लुक, आई थिंक जब आजकल के ज़माना में जब देखता है ना, आज के रेलेवेंस को आपको देखता है कि जो स्वामी जी ने हमको सिखाया है, एंड देन आज का जो मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में उनका क्या इम्पोर्टेंस है ना. हम लोग बोलते हैं ना, आप लोग सुनता ही होगा कि आपका मैडम लोग बोलता होगा कि उनका जो टीचिंग्स था वो टाइमलेस था, मतलब अपना समय से बहुत आगे का सोच के 100-200 साल आगे के लिए भी रेलेवेंस छोड़ गया उन्होंने जो हमको सिखाया है ना. आप देखिए अभी in today's world we can see conflicts. आप लोग न्यूज़ देखता है, देखिए स्वामी जी का जो टीचिंग्स को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं. हाँ, अभी आपका मतलब जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए अंकल बताएगा, ठीक है. अंकल तो पुलिस ऑफिसर है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी का थोड़ा सा बात करेगा. हाँ, आप लोग छोटा है, ठीक है. यहाँ पे पुलिस ऑफिसर लोग आके आप लोग से बात करते नहीं करते, आई डोंट हैव एनी आइडिया. बट देखिए, क्योंकि हमारा जो लड़की बच्चे हैं ना, खास करके देखिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करना तो अच्छा है ना, खास करके सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह मतलब प्रॉपर वे में यूज़ करता है तो इट्स गुड. बट आई वुड सजेस्ट कि आपके एज में सोशल मीडिया और मोबाइल इतना यूज़ नहीं करना है, ठीक है. आप तो पेरेंट्स के साथ में रहता है या तो टीचर्स के साथ में रहता है, तो कहीं बाहर जाता है तो टीचर्स को बता के जाना है, आप तो पेरेंट्स को बता के जाना है. मोबाइल का इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है. आप लोग छोटा लड़की लोग है ना, देखिए हम लोग वी सी दिस होल आई मीन आप लोग जो पर्सपेक्टिव से देखता है वो अलग है. दुनिया जैसे दिखता है ना वैसा नहीं है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है. बट आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, आपको डरा नहीं रहा है. बट स्टिल हम जहाँ भी जाता है, जितना भी बेटी होता है ना, आप छोटा लड़की है ना, आपको केयरफुल रहना है. That's what I'm trying to say. ठीक है. I won't take much time. देखिए, I was talking about the teaching that our Swami ji has taught us. तो उसमें ये बोल रहा था कि I think आज के ज़माना में काफ़ी रेलिवेंस है, because we see lots of conflicts. अगर आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना, वॉर में है अभी, पता है आपका यूक्रेन और रशिया वॉर कर रहा है, एंड देन आपका मिडिल ईस्ट में है ना, ईरान वगैरह हो गया, इसके बाद फलस्तीन हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब है. तो वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज स्वामी जी ने हम लोग को यूनिवर्सल ब्रदरहुड और यूनिटी के बात किया है. और जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबको भाई बहन की तरह से देखना है, मानना है ना. वेदर आप हिंदू से हो, क्रिश्चियन हो या जो भी हो, ठीक है, वो आप ब्रदरहुड का एक फीलिंग्स अंदर में लाना है.